and I was supposed to go for his book launch, and now here I am. We would like to hear about Gita and Sahaj Gita. Thank you. Thank you. Yes, Madhuri, you're on mute. Yeah, hi everyone. My name is Madhuri and I'm joining from London today. I'm Avinash's batchmate from our business school days. And yeah, I've always wanted to learn more about the Gita in a systematic way, Avinash. And I tried in the last session, but I couldn't really keep up. And this time I hope to be regular and looking forward to all the learning. Look forward to. Thank you. Wonderful. Well, I am Kamleshwar Nath, retired judge. I'm interested in Gita. I've read Anasakti of Gita written by Mahatma Gandhi, and that has appealed to me as the most as a very simple and clear statement of the philosophy contained in Gita. I tried to attend the earlier sessions too, and I did so. And I believe that this new session brings new life to this wonderful project. This is the philosophy of life which India has propagated since ages and is full of wisdom for everybody to maintain peace and happiness in life and in the life to come. That's how I am interested. Very well, I'm now 97 years of age. So that's how I'm very quite interested in understanding what Gita wants to tell us. I hope, I'm sure, Avinash will be able to go through it excellently. Thank you. Incidentally, ये मेरे फूफा जी हैं और ये यहाँ पर हैं. That is a big blessing for me and it's a big inspiration कि we must be doing something right. तो कि हमें continue करते हैं अपनी blessing से. Thank you so much, फूफा जी. God bless. Hi there. My name is Amita Chaudhary, and I am also a batchmate of Avinash's from business school. And for कमलेश्वर जी, आप जब उनको अविनाश जी बुलाते हैं तो बड़ा और लगता है क्योंकि हम साथ में पढ़े हैं. So I'm used to calling him, just Avinash. But thank you very much for this. This Gita session that you are leading. I've heard so much about how Gita can really bring peace of mind and contentment. That's what I'm looking forward to from the lessons. So thanks again. Great. Thanks, Amita, for joining. Yeah, I would like to, Amita. Hi, everybody. I'm Sandhya from Ahmedabad. You guys call him Avinash. I call him Guddu. His pet name, because I have known him when he was a kid. See, almost 30 years over, his sister and, so it goes that, long back. I did attend his last sessions and my God, Gita is like, we all have grown up with Gita. And as many times as one is like, close to Gita, listening, reading, trying to understand. It's every time you get to know something more, and it's life is simple, life is complex. So Gita makes it simple. So that's it. And we're looking forward to requesting everybody to continue to somehow manage to be, there. It's great fun when all of us are together. We get energy from each other. Thank you, Avinash, for continuing. Thank you so much, Dee. Thank you so much. Yes, greetings to everyone. I am Rajni Chandna from Hyderabad. Unlike Madhuri says, I am also not able to continue. Just few sessions I attended, but I'm really so much inspired with Avinash. So nicely you are explaining about Gita's explanation and things. So I'm really very much keen to know more about Gita's values and know about so many other things. So really very thankful to you, Avinash. Again, we are meeting.
for this. Thank you. Thank you for joining, Rajni ji. Definitely, we all hope we'll spend more time together this time. Ji. So, hello everyone. I'm Bunty Pai. I'm Madhuri's sister. And as soon as I got to know that, her batchmate is Avinash, I've heard a lot of good things about you from Madhuri. So, and Amita is one more person in the room whom I know. So, yeah, I mean, all I can say is I'm just looking forward to the sessions. Thank you so much. Thank Yeah. you so much, Bunty. There are actually two more people in the physical room you may know. They were surprise guests. Once everybody is done, I will bring them in. Oh, wow, that's fabulous. Lovely. Thank you. Thanks a lot. Thank you for joining. Dinesh ji, Hemlata ji, Eddie. Oh, Eddie is here. Yes, Along with I'm his- here. Along My with his camera son. is not working today, but Awesome. I'm very much here. Yes. Great. Awesome. My camera, somehow something went wrong, so I don't see anything. Something blur coming up. I have to fix this. So okay, I have to go without camera today. So so nice to meet everybody, and thank you, Avinash, for starting this. And it was my request. First, I remember that we should have it again. And yes, I think it's nice that we have come together. And भाई कोई किताब दोबारा पढ़ा जाए ना तो कैरेक्टर को फिर और थोड़ा अच्छी तरह से समझा जाता है. इसीलिए हम शोले जो है 16 बार देखे हैं. तो इसीलिए तो गीता तो हम 2-4 बार हो ही सकता है. एडी, तो फिर I'll take it from you कि तुम अगले 16 सेशन अटेंड करोगे गीता के. Hopefully. I love to. Awesome. I'm Dr. Dinesh Talwar. I'm a retinal surgeon in Delhi. Work in Center for Sight in Safdarjung Enclave. Yeah, I've been interested in the Gita for a long, long time, and the basic premise of working without, without desiring a reward is something that I find it's great, and I think it makes life simple. But I have a lot of doubts about my own. Do we really manage to do this? Because a reward doesn't have to be a direct reward. It can still be at a very subtle level also. And I'm hoping that Avinash, you will give us a lot of insights about how to interpret the Gita. When I last remember of reading it, I found a little tricky point in that what it would say at one point of time, a few paragraphs later, it would say the contrary thing also. Now that becomes very difficult to interpret, and I'm hoping that I will get an easier way to understand how to interpret those different nuances. Thank you so much, Dr. Dinesh Talwar, for joining. And couldn't agree more. गीता एक बार में समझ में वाली चीज नहीं है, और ऐसा नहीं कि हम में से कोई उसको पूरी तरह, आपके डाउट्स को शायद पूरी तरह, अपने डाउट्स को पूरी तरह कर पाएंगे. इट्स अ जर्नी दैट वी आर ऑन इन, एंड दैट्स आवर होप कि हर बार जब हम शुरू करते हैं तो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स. सो लेट्स होप द सेम हैपेंस दिस टाइम टू. Hello all, I am Hemlata Chandrasekhar. I am Avinash ji's colleague at NCU School of Business. I really look forward to get enlightened here. This is my first attempt at something formal in regarding Gita. Thank you so much, Hemlata ji, for joining. And उम्मीद करते हैं that we will definitely keep the session interesting and engaged. I think Anita ji, Anupma ji, can you just briefly introduce yourself, and then we are good to go.
Avinash, I think you need to mirror your video because the Sahaj Gita on the top is ओह it's the wrong way. Yeah. ओके ओके, मैं करता हूँ। मैंने एक्चुअली करा था तो पहले उल्टा आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये गलत है। लेट मी डू दैट। I like this setup. ये बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में. This is very nice. ये आई डोंट नो अभी सही हुआ कि नहीं, अदरवाइज मैं आज के लिए हटा दूंगा, फिर आई पुट इट बैक। ये अभी सही नहीं हुआ, हाँ, उल्टा ही आ रहा है। नहीं हुआ अभी. नहीं हुआ, ठीक है, तो I'll remove it for today and That then doesn't matter. You can leave it for today. Leave it for today. It's not the fundamental issue here, no. चलो ठीक है, I'll fix it. मैंने किया था तब, पहले मेरे को उल्टा दिखा रहा था। लुक्स लाइक वो मेरे को उल्टा बहुत दिखा अच्छा रहा बना था, है. सीधा ही दिखता। Very nice. नो वरीज। पहले तो हम प्रमोद ऐसे ही जी, बैठ जाते थे. गुड टू Nice. सी। आई थिंक अनिता जी कुछ, अनुपमा जी कुछ बोल रहे थे, आप म्यूट पे हैं। प्रमोद जी अनुपमा भी जी आ आप गए। म्यूट पे हैं। आपको अनम्यूट करना होगा। आप अभी भी म्यूट पे हैं, आपको अपना स्पीकर ऑन करना होगा। हाँ, नहीं नहीं, अभी भी म्यूट है। प्रमोद जी आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? अनिता, अनुपमा जी आपका माइक अभी भी म्यूट पे है। वो स्क्रीन के नीचे म्यूट बटन है, बिल्कुल नीचे राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर में. प्रमोद जी वेलकम. बड़ा अच्छा लगा आपसे फिर से मुलाकात हो रही है. हाँ आदित्य जी, वेरी वेलकम टू यू ऑल्सो. एंड वो एक्चुअली मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब जाके डाटा मिल रहा है तो मैंने कनेक्ट किया. और हेलो. प्रमोद जी बहुत ट्रैवल करते हैं, है ना? हाँ कभी ट्रेन से जुड़ते हैं, कभी कई बार ट्रेन से भी आप जुड़े हैं हमारे साथ। जी जी अनुपमा जी, बिल्कुल. ठीक. अनुपमा जी आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी? आई थिंक वी लॉस्ट हर। और just to show two more people who are physically with us in the room are my batchmates from I am Bangalore and his wife Ravi Shankar Pandey and his wife Madhvi ji. Namaskar. Oh, great to see, great to meet. A pleasure. Mr. Pandey Hello. ji. Hey, Madhuri. Hey, Madhuri. नमस्कार नमस्कार. राम राम जी. बहुत. तो अभी फिजिकली आप कहाँ पर हैं अविनाश जी? मैं फिजिकली दिल्ली में हूँ, अपने घर में। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट. So thanks everyone for joining. अगर एक आध कुछ अब इंट्रोडक्शन रह गया हो, we'll continue and then towards the end we can catch up. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताइएगा once you guys are able to see it. One second. आई होप आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। जी दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। As Murphy's goes, there's a wrong deck that has opened. So I have to just open. हाँ नहीं ठीक है, वो अटक गया था। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार आप सबका। तो बहुत लोग जिनसे हम जुड़े हैं आज और जो पहले से भी हमारे सेशन में थे, सब जानते हैं कि गीता को मैंने
सरल हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो प्राइमरली हम जो अपना डिस्कोर्स रखेंगे वो उन वर्सेस को हिंदी में बोलते हुए करेंगे। होपफुली हिंदी में जो हम बातचीत करेंगे सबको समझ में आएगी। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एंड फॉलो हिंदी। और उसके बाद जो हम डिस्कोर्स करेंगे, जो हम डिस्कशन करेंगे, वो जैसे हम कंफर्टेबल हो, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में, बिकॉज द आइडिया इज टू कनेक्ट विद ईच अदर। तो एक्सेप्ट कि जो हमने वर्सेस को ट्रांसलेट किया वो हिंदी में किया है, दैट वाज द ओरिजिनल इंटेंट कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो सके, वो हिंदी में है। बट एज फार एज डिस्कोर्स गोज वील यूज नॉर्मल लैंग्वेज। द होल आइडिया इज टू अंडरस्टैंड व्हाट गीता इज। और कुछ लोग पहले भी हमसे जुड़े थे, कुछ बीच में भी जुड़ रहे हैं, और कुछ लोग शायद आज नहीं हैं लेकिन आगे भी जुड़ेंगे। तो गीता समझना एक तरह से नदी में स्नान करने के बराबर है। जब हम नदी में पैर डालते हैं ना, सबसे पहले बहुत ठंडा लगता है, एकदम से हम पीछे हट जाते हैं, तो सीधे डुबकी नहीं ले सकते हैं। तो गीता में कुछ ऐसा ही होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब शुरू में पढ़ना शुरू किया तो 1-2 पेज पढ़े और उसके बाद नींद आ गई, बोर हो गए, छोड़ दिया। फिर कुछ महीने बाद फिर उठाई, तो वो बिल्कुल, वो शुरू में इनर्शिया होता है, थोड़ा सा शौक भी लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को अलाउ करें उस ठंडे पानी में उतरना, थोड़ा सा ठंडा लगेगा। तो जो लोग पहली बार इसमें आ रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ा सा जल ठंडा लगे, लेकिन एक बार आप उसके अंदर घुस जाएंगे तो वो इतनी ताजगी देगा, इतना आपको अनकंडीशन डीकंडीशन करेगा। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं होप करता हूँ हम सब मिलके वही एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे। जो एक मेटाफर में यूज करता हूँ, गीता समझ लेना, पढ़ लेना इज लाइक जैसे आपको स्विमिंग आ गई। यहाँ पे किस किस को स्विमिंग आती है? जितने लोग हैं यहाँ पे, मैं स्क्रीन तो नहीं देख पा रहा, आप लोग को बोलना पड़ेगा। मुझे आती है। मुझे आती है। वंडरफुल। तो जिस चीज को स्विमिंग आती है, आई एम श्योर वो रिलेट कर सकता है कि अब उसे पानी में उतरते ही वो डूबने का डर नहीं रहता। हम बात करें अगर हल्के फुल्के पानी में जहाँ कहीं भी है, तो गीता पढ़ना इज एग्जैक्टली लाइक दैट। फिर आपको छोटी मोटी चीजें, गुस्सा आना, लालच होना, थोड़ा सा झूठ बोल देना, जो अदरवाइज हम लोग बहुत आउट ऑफ कंडीशनिंग सीख जाते हैं, उन सब से हम ऐसे लिबरेट हो जाते हैं कि जिसको एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सबसे पहला टेक अवे होता है। तो गीता में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, ये मैंने एक छोटा सा समरी स्लाइड बनाया है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें, जैसे हम बोलते हैं, एक सिंपल और हैप्पी लिविंग के लिए। तो सिंपल और हैप्पी लिविंग ऐसे ही नहीं आ जाती, कुछ नगेट्स को हमें समझना पड़ेगा, इंग्रेन करना पड़ेगा। तो वो हैं कॉन्सेप्ट्स लाइक आत्म, जो पहले ही, सबसे पहले, जैसे ही अर्जुन ने, हम सब जानते हैं गीता का कंटेक्स्ट क्या है, सेटिंग क्या है। तो जैसे ही अर्जुन ने सबसे पहले अपना डाउट किया कि मैं कैसे अपने सगे संबंधियों के ऊपर वार कर सकता हूँ, कृष्ण ने सबसे पहले ये नहीं बोला तू जा काम कर, तू क्षत्रिय है। कृष्ण ने सबसे पहले, और हम आगे पढ़ेंगे कैसे आता है, सांख्य योग डेवलप करता है, कृष्ण ने सबसे पहले उसे आत्म के बारे में समझाया। अब जैसे हम लोग, राम रामा बन गया, कृष्ण कृष्णा बन गया, योग योगा बन गया, ऐसे आत्म आत्मा बन गया। लेकिन जो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है आत्मा की, जिसको हम सोल से इक्वेट करते हैं, आत्म कॉन्सेप्ट उससे बहुत कहीं गहरा है। सोल का जो इक्वल पैरेलल ड्रॉ किया जाता है आत्मा को सोच के, दैट इज जस्ट द लाइफ फोर्स। जब बॉडी से लाइफ फोर्स चला जाता है तो बॉडी किसी अपने आप से कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्म इज बियॉन्ड लाइफ फोर्स, और हम सीखेंगे वो क्या है। सो बेसिकली आज हम जो हैं, हम सब इस रूम में जो हैं, हम सब हैं अपनी पुरानी जितनी एक्सिस्टेंसेस हमारी रही हैं उनका सम एंड सब्सटेंस हैं हम आज। हमने जो भी चॉइसेस अपनी वेरियस एग्जिस्टेंसेस में की हैं उसका रिजल्ट है हम आज। और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम नॉलेज के थ्रू, नॉलेज गीता से आ सकती है, नॉलेज संस्कारों से आ सकती है, नॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से आ सकती है। हम जब एक नॉलेज को ग्रहण करके हम कोई चॉइस लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो चॉइस, जैसे बोलते हैं कि इन्फॉर्म्ड चॉइस होगी, बेटर चॉइस होगी। तो हम जो आज चॉइस करेंगे वो रिजल्ट करेगी हमारा कल का एग्जिस्टेंस कैसा होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ आत्म। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम गीता से सीखेंगे। क्षेत्र क्षेत्र के बहुत ही प्रोफाउंड और डीप कॉन्सेप्ट है, आगे जाके अध्याय 13 में आता है। विल पार्क इट फॉर नाउ। स्थित प्रज्ञ, इक्वानिमिटी, कैसे हम सुख और दुख में इक्वानिमस रहें। और ये सबसे बड़ा जो डाउट होता है लोगों का यही होता है कि हम इक्वानिमस रह कैसे सकते हैं, भाई सुख सुखी करता है, दुख दुखी करता है। उसके भी हम नगेट सीखेंगे। ये सीखेंगे हम क्यों सुख या दुख से बंध जाते हैं। पुरुष प्रकृति, क्षेत्र क्षेत्र के बराबर पुरुष प्रकृति का नगेट है।
जो हम सीखेंगे अध्याय 13 में और पुरुषोत्तम योग में। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इट्स ऑल अबाउट आवर स्टेट ऑफ माइंड, कि हम किस चीज को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो डिटरमिन करता है हम कृष्ण पक्ष अवस्था में है या शुक्ल पक्ष अवस्था में है। बहुत इंपॉर्टेंट है सत्व, रजो, तमो। अगर हम और कुछ नहीं भी समझें, अगर हमें लगता है स्थित प्रज्ञ होना बहुत मुश्किल है, अगर हमने सत्व, रजो, तमो पकड़ लिया, हमारी आधी जो जिंदगी के चैलेंजेस हैं वो चले जाएंगे। ये हम सीखेंगे, बहुत लेटर इन द स्टेज आता है, लेकिन इसकी झलक हमें दूसरे अध्याय में ही मिल जाएगी। कर्म, विकर्म, अकर्म, डिटेल में बात करेंगे उस अध्याय 3 में, जब कर्म योग की बात करेंगे। तो गीता में सब लोग को अगर नहीं भी ज्ञात हो तो 18 अध्याय हैं। देयर आर 18 चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्जुन विषाद योग ऑल द वे टिल द लास्ट चैप्टर। और ये 18 समेशंस होते हैं। एंड इट्स नो सरप्राइज कि ये हमारा नया सेशन आज शुरू हो रहा है 18 फरवरी को, 18th of February। सो इट्स सम डिवाइन ब्लेसिंग, देयर इज सम न्यूमरोलॉजी एट प्ले ओवर हियर। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव। थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, जब उस पे आएंगे देन विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी गेट देयर। उससे पहले बहुत कुछ और सीखेंगे। इट्स लाइक अ थर्ड टर्म का सिलेबस है ये, पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म पूरा करेंगे। फिर आता है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये भी जरूरी है इंट्रोडक्शन के लिए। गीता के 18 चैप्टर्स को 3 योगों में बांटा गया है। पहले 6 चैप्टर्स कर्म योग, दूसरे 6 चैप्टर्स भक्ति योग, तीसरे 6 चैप्टर्स ज्ञान योग। सो कर्म योग इज वर्चुअली डू एज डायरेक्टेड। जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो पहली चीज थी कर्म योग, डू एज डायरेक्टेड। अर्जुन ये करो कि अगर तुम मान जाते हो कि नहीं। बट अर्जुन थोड़ा टेढ़ा स्टूडेंट था, थोड़ा चैलेंज स्टूडेंट था, चैलेंज कर रहा था कृष्ण को। तो उसने कहा नहीं, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, अपने क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स लेता हूँ थोड़े से। तो उसने कुछ सवाल पूछे, तो कृष्ण ने उसे भक्ति योग बताया कि अब तुम डू एज डायरेक्टेड के बियॉन्ड जा चुके हो, आई हैव टू टेल यू हु आई एम। तो भक्ति योग जो है हमें यह सिखा के जाता है कि हम सुप्रीम नहीं हैं। हम अपने आप को बोलते हैं ना, ये दुनिया हमने बनाई है, घर हमने बनाया है, अपना करियर हमने बनाया है, वी आर सेल्फ मेड। तो भक्ति योग शोज अस आवर प्लेस, कि भैया इस पूरे यूनिवर्स में तुम चींटी के बराबर भी नहीं हो। और जब तक तुम सरेंडर नहीं करोगे, जब तक तुम समझोगे नहीं कि हु इज रनिंग द शो ओवर हियर, तब तक तुम उलझे रहोगे। एंड लास्ट इज ज्ञान योग, विच इज अ सेल्फ, जिसे बोलते हैं DIY, कि अब मैंने तुम्हें सब ज्ञान दे दिया है। और इनफैक्ट चैप्टर 18 में कृष्ण अर्जुन को बोलते भी हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, कि मैंने सब तुम्हें बता दिया है, नाउ डू एज यू लाइक। तो ज्ञान योग हमारे को वो किट देके जाता है, जिसके बाद हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाता अपना धर्म का पालन करने का। देन देयर कॉन्सेप्ट्स लाइक साकार, निराकार, विल टच अपॉन देम। ओम तत्सत, वेरी पावरफुल नगेट। दैवासुर संपदा, सन्यासी, कर्मयोग, सांख्योग और स्वधर्म। So this is just a summary of the nuggets. It's like a trailer of what is there to come. और yes, जितना आप उसमें उतरेंगे उतना आपको कई बार ऐसे होगा कि भाई what are we into, हमें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, I have better things to do। तो उनके लिए बस मेरी रिक्वेस्ट यही है, डेफिनेटली अटेंड टू योर मोर इम्पोर्टेंट वर्क, बिकॉज गीता का तो नगेट ही है कर्म करना। यदि आपका किसी एक संडे एक प्रायोरिटी है जो आपको वही कर्म करना है, तो प्लीज वो कर्म करिए। यहाँ गीता सेशन में आकर आप अगर अपना कर्म छोड़कर आएंगे तो वो जस्टिस नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, क्योंकि सारे नगट्स एक दूसरे में इंटरट्वाइंड हैं, तो कोशिश करिए जितना रेगुलर हो पाए उतना वो बेनिफिट होगा। रिकॉर्डिंग भी हम लोग डालेंगे ताकि आप कैचअप कर पाएं ऑफलाइन। लेकिन जितना आप प्रेजेंट से, क्योंकि जो 5 ग्रुप से भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, उनका एक्सपीरियंस भी यही है कि लर्निंग हमारी गीता की तो है ही, लर्निंग हमारी एक दूसरे से आती है, बिकॉज वी आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सेम सुप्रीम। सो विद दैट, इफ एनीबडी हैज एनी थॉट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, let's spend about half a minute to understand if anybody has to add anything. Otherwise we can dive straight into Arjun Vishad Yoga. Okay, so here we begin. So अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। इस चैप्टर में it begins with संजय जो है धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का परिचय देते हुए बताते हैं कि अर्जुन किस तरह से परेशान हो उठे हैं सामने, और कैसे अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर उनका बहुत ही
विचलित हो उठे हैं और कृष्ण को युद्ध की सारी बुराइयां बताते हुए कि भाई वॉर तो इसलिए खराब है, हम खून खराबा क्यों करें, मुझे तो राजपाट नहीं चाहिए, अपने लोग को मारने से क्या मिलेगा मुझे। दैट्स हाउ गीता बिगिंस। यहाँ ये इंटरेस्टिंग चीज है कि गीता का पहला शब्द है धर्म। उसका पहला श्लोक शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों ने क्या किया। तो ये धर्म से क्यों शुरू होता है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। सब जानते हैं कि गीता युद्ध के पहले दिन दी गई थी, लेकिन महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो महाभारत के 18वें पर्व में गीता शुरू होती है। उस समय गीता का युद्ध हो चुका, कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हो चुका था और भीष्म उसी दिन गिरे थे, अर्जुन ने उनको बाणों से गिराया था। तो गीता उसके बाद शुरू होती है, इन द सेंस जब धृतराष्ट्र को पता चला कि भीष्म को अर्जुन ने गिरा दिया है तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। भीष्म पितामह तो धर्म को पैराफ्रेज करते थे और सबसे बड़े महारथी थे। अगर भीष्म को गिराया जा सकता है तो इसका मतलब कुछ बहुत ही बड़ा अधर्म हुआ होगा। दिस इज द कंटेक्स्ट व्हाई ही आस्क्ड कि संजय मेरे को बताओ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ऐसा क्या हुआ। और तब संजय उन्हें एक तरह से फ्लैशबैक की तरह बताते हैं, महाराज मैं आपको बताता हूँ गीता में क्या क्या बोला गया। और तब सबसे पहले, एंड दैट्स वेयर वी बिगिन, और ये सारे वर्सेस आपको हिंदी में कोशिश करी है कि थोड़ा पोएटिक राइम हो तो इंटरेस्ट बना रहे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आए, क्या करते हैं पांडव कौरव संजय मुझे बताएं, ये धृतराष्ट्र ने पूछा। तो संजय ने बोला दुर्योधन ने व्यू से बंदे देखी पांडव सेना, निकट द्रोण के जा उसने शुरू किया ये कहना। क्या बोला दुर्योधन, शत्रु पक्ष की है गुरुवर सेना देखे विशाल, नायक जिसके स्वयं आपके शिष्य द्रुपद के बाल। द्रुपद और द्रोण की पुरानी दुश्मनी थी और इसीलिए उनको, एक सेकेंड लेट मी जस्ट म्यूट अदर्स, और इसीलिए उनको उकसाने के लिए दुर्योधन ने बोला कि देखिए द्रुपद के जो शिष्य हैं वो आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और इसलिए कि ताकि द्रोण जो हैं उसको देख जाएं कि देखो किस मेरे अगेंस्ट मेरे शिष्य खड़े हुए हैं। पांडुपुत्र भीम अर्जुन युद्ध को भय अधीर, और दूजी ओर पधारे द्रुपद विराट से वीर। दृष्ट केतु चकितान काशीराज सब आए, शैव पुरुजित रणभूमि में कुंती बोझ पठाए। तो सारे उन्होंने जो इतने वीर लोग थे सामने पांडवों की सेना के, वो सारे गिनाने शुरू कर दिए। उत्तमौजा संग पधारे विक्रांत और युधामन्यु, रत्न द्रौपदी पांचों एवं अंश सुभद्रा अभिमन्यु। तो जो पहला चैप्टर है इसमें थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल हो रहा है, इट्स मोर लाइक अ नरेशन कि सामने कौन कौन खड़े हैं। जब हम थोड़ा फिलोसफिकल उसमें उतरेंगे तो सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड जो शुरू होगा, फर्स्ट चैप्टर इज मोर लाइक अ कंटेक्स्ट सेटिंग। और फिर उसमें दुर्योधन बोलता है किंतु श्रेष्ठ आचार्य अपनी सेना भी ले जान, अपने पक्ष के परम वीरों की देता हूं पहचान। और इसमें हमें समझना इतना है कि जब हम अपने जीवन के करीब करीब कई लड़ाइयों से गुजर रहे होते हैं, एक तरह से मेटाफोरिकल कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, छोटी छोटी चीजों पर हमारे को रिचुअल सिखाए जाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में देखते होंगे तो बच्चे उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनका वही कुरुक्षेत्र हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है हम क्या करें, हम अपने परम प्रिय बड़े लोगों के अगेंस्ट जाएं या अपने मन की बात माने। तो ये सिंपल सी चीज होती है, यहाँ पे भी हमें सीखना होता है कि देयर इज नथिंग लाइक बड़ों के अगेंस्ट जाना। हमारी एक लाइन ऑफ थॉट है, हमारी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, और सबसे ज्यादा हम समझेंगे अपने धर्म के बारे में अगर हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और धर्म क्या है, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो उस नेचुरल इंस्टिंक्ट को हमें फॉलो करना ही चाहिए। हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के प्रति इम्पोलाइट हों, रूड हों, लेकिन अगर हम उस इच्छा को दबा दिए जाते हैं तो आगे जाके हम सीखेंगे कि अपने इंस्टिंक्ट्स को दबाना जो होता है बहुत ही इनजस्टिस का काम होता है, और वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स देके एक टॉक्सिक की तरह हमारे अंदर रह जाता है। तो इसीलिए जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो हमें जरूर उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे हम अर्जुन के सामने देख के कह रहे हैं कि मेरे सामने दूसरे लोग खड़े हैं जो मेरे परिवार के हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वो करना है जो उस समय आपके लिए उचित है। और फिर दुर्योधन बोलता है किंतु श्रेष्ठ आचार्य अपनी सेना भी ले जान, अपने पक्ष के परम वीरों की देता हूं पहचान। स्वयं आप पितामह भीष्म अश्वत्थामा कर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरि श्रव कृपाचार्य विकर्ण।
अपनी ओर भी वीक अनेकों मिटने को तैयार, साथ में अपने लाए हैं शस्त्रों के भंडार। और फिर दुर्योधन थोड़ी टोन धीमी करके बोलता है, पितामह के होते भी क्यों जीत लगे है सीमित, उधर भीम को होने से शत्रु लगे सुरक्षित। अब उसे लगता है यहाँ इतने लोग हैं लेकिन भीम तो सामने वाली पार्टी में है। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं तो हमारे थॉट्स में भी यही आता है कि हमारे पास क्या क्या आर्सेनल है, क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दूसरे का माइंड भी रीड कर पाते हैं कि उसके पास हमसे ज्यादा बड़ा क्या आर्गुमेंट हो सकता है जिससे हम डरते हैं। तो ये हमें अपने डर को भी एक तरह से जीतना होता है। दुर्योधन निज सेना के वीरों से कहे वचन, भीष्म पिता की रक्षा का हम सबको लेना प्रण। तो जैसे कौरवों की सेना में सबसे जरूरी भीष्म थे कि सो लॉन्ग एज आपने भीष्म को पराजित होने से बचा लिया तब तक हमारे को कोई छू नहीं सकता। हम सब के अंदर भी कोई ना कोई एक भीष्म होता है और हम उसके प्रति बहुत ही, जिसे बोलते हैं, हम अपना टर्फ बना लेते हैं कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना है एट ऑल कॉस्ट्स, भले ही वो भीष्म भी हमारा गलत साइड पे हो। तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि हम जब किसी से डील कर रहे होते हैं हम कहीं अपने अंदर के किसी भीष्म की रक्षा तो नहीं कर रहे होते, धर्म की रक्षा करने के बजाय। शंख बजाए भीष्म सिंह की जैसी गर्जन, उसके घोर घोषनाद से प्रसन्न भया दुर्योधन। साथ साथ ही बज उठे तुरही ढोल नगाड़े, कोलाहल में हो उठे युद्ध के सभी अखाड़े। श्वेत अश्व के दिव्यारथ पे सजते कृष्ण और पार्थ, युद्ध भूमि का हृदय चीरते शंखनाद के साथ। ये सिर्फ जो हमारे अंदर का डिस्टर्बेंस होता है वो कई तरह से मैनिफेस्ट करता है, जहां पर हमें अपने मन की आवाज सुननी बंद हो जाती है और आसपास जो हो रहा होता है हम उस शोर में डूब जाते हैं। और हर सेशन में हम लोग फॉर्मेट इस तरह से रखते हैं कि थोड़ा थोड़ा, अभी क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल चल रहा है तो हम सीधे पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसा ये और डीप होता जाएगा हम एक एक श्लोक में जहाँ पे नगेट्स होंगे उन पे डिस्कशन करते करते साथ में जाएंगे। यहाँ मैं और 5-10 मिनट बाद रुकूंगा ताकि वी रिफ्लेक्ट बैक ऑन इस पर्टिकुलर अर्जुन विषाद योग का हमारे लिए क्या रिलेवेंस है और हम क्या सीख सकते हैं, कैसे हम अपनी फाउंडेशन बनाते हैं अपने ही फियर्स को फेस करने के लिए। सो इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट। सो वी विल गेट इनफ टाइम फॉर एक्सचेंजिंग आवर व्यूज टुवर्ड्स द एंड। पांच जन्य से करे घोषणा स्वयं त्रिलोकी नाथ, अर्जुन फूके देवदत्त भीम पौंड्र के साथ। अनंत विजय से नाद करे हैं युधि धर्म के देव, नकुल बजाते शंख सुघोष मणि पुष्पक सहदेव। तो सब वीरों ने भीष्म के शंख फूकने के साथ ही अपने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। वेरी सिमिलर टू जैसे ही हमारे अंदर कोई एक मेन थॉट आती है जो हमारे ओवर पावर करती है, वैसे उसकी काउंटर थॉट्स भी अपना अपना इन्फ्लुएंस करने लगती हैं हमारे माइंड के ऊपर। सो दिस इज जस्ट अ मेटाफोरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ जो आपकी मेन थॉट आती है वो आपको ओवर पावर करती है और फिर आप देखते हो उसके साथ ही अलग अलग छोटी छोटी काउंटर थॉट्स, ये किया तो वो होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा, ऐसा करने में किसका भला होगा। ये इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल दैट नॉइज। काशीराज दृष्टुम बजाते अपने अपने शंख और बजाते सत्य की विराट और शिखंड। द्रुपद द्रौपदी पुत्र भी करते घोर शंख से नाद, और सुभद्रा लाल बजाते पुष्ट बाहु के साथ। शंख ध्वनि का भीषण स्वर जब कुरुक्षेत्र में बोला, शोर से उसके कुरुसेना के वीरों का मन डोला। पवन पुत्र की छाया वाले रथ पर बैठे वीर, कुरुपुत्रों के प्राण हरण को अर्जुन भय अधीर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मोड है यहाँ पर। अभी अर्जुन जो है बिल्कुल गंगो हो रखे हैं कि हाँ अब तो मैं जाके शत्रुओं का दमन कर दूंगा और मैं महाभारत का युद्ध शुरू कर दूंगा। और इसी एक्साइटमेंट में क्या बोल जाते हैं वो, कृष्ण से बोले हे अच्युत रथ को आगे बढ़ाएं, युद्ध की दोनों सेनाओं के मध्य आप ले जाएं। अब यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, हर एक बच्चे के जैसे जिसका एग्जाम होने वाला है उसको हमेशा लगता है ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो टीचर से पूछता है सर मॉडल पेपर बता दीजिए, फॉर्मेट बता दीजिए, स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो ये अर्जुन अपनी जगह खड़े होकर आराम से तीर चलाना शुरू कर सकता था। उसके मन में वही कुलबुलाहट हुई, बोला मेरे को जरा चीट शीट तो दे दो, दिखा तो दो किस किस के सामने मुझे लड़ना है, देख ना लूं मैं सबको किस किस से है लड़ना, तब तक इस रथ को स्वामी रण के बीच ही रखना। तो जो हमारा मन होता है ना, जो चाहना चाहता है कि देखूं मैं फ्यूचर के ग्लिम्स तो देखूं, ये एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर द अननोन। पर उसका परिणाम हम अगले श्लोक में ही हमें देखने को मिल जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे अर्जुन ने बोला हे अच्युत,
तो इस तरह से कृष्ण को अर्जुन ने 18 अलग अलग नामों से पुकारा है पूरी गीता में, और वो हम देखेंगे कैसे कैसे नाम है। जनार्दन, जगत स्वामी, कमल पत्राक्ष, अच्युत, गोविंद। ये सिनोनिम्स नहीं है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम कृष्ण के सिनोनिम्स समझते थे, गोविंद, कन्हैया, कान्हा, वासुदेव, अच्युत। ये हर एक वर्ड जो है उस समय की अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है, और उसके अनुरूप वो कृष्ण से क्या एक्सपेक्ट करता है वैसा नाम लेके बुलाता है। तो हमने जब बुक में कंसोलिडेट किया इनको, तो लास्ट में एक चैप्टर में ये भी लिखा है कि कृष्ण के 18 नामों के पीछे क्या मनोस्थिति है। अब इस समय अर्जुन में एक इनसिक्योरिटी है, वो जानना चाह रहा है कि उसके अगेंस्ट कौन कौन खड़ा है, ताकि वो किस किस से कैसे लड़े। और अच्युत होता है रक्षा करने वाला, तो इसलिए वो कृष्ण से एक्सपेक्ट कर रहा है कि देखो मेरे सामने बड़े बड़े वीर हो सकते हैं, मेरी रक्षा करना। तो ये अगर हम इन भावों को ध्यान में रखेंगे तो जो उस श्लोक के पीछे का कंटेक्स्ट है उसको भी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मुझे देखना युद्ध भूमि में कौन पड़ेगा भारी, दुर्योधन की कुबुद्धि ने किसकी मति है मारी। ये एक जेम है बिल्कुल गीता का, जिसको हमने जगह जगह हाईलाइट किया है। ये जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है ना कि हमें जरा क्वेश्चन पेपर दिखा दो यार, क्वेश्चन पेपर दिखाने को तो आसान काम है, क्वेश्चन पेपर देख के झेल पाना हर एक के बस की बात नहीं है। अर्जुन जैसा महावीर भी युद्ध का ट्रेलर देख के देखो क्या हाल हो रहा है उसका। तो मंद मंद मुस्काए केशव, इच्छा अर्जुन जान, अपने रण को रणभूमि के बीच दिया स्थान। भीष्म द्रोण वीरों की सेना अब है तेरे समक्ष, हे अर्जुन तुम यहां से देखो युद्ध के दोनों पक्ष। अब कृष्ण भी बहुत माने हुए टीचर हैं। कृष्ण ने सिंपल नहीं दिया मॉडल टेस्ट पेपर, कृष्ण ने उसमें भीष्म और द्रोण का तड़का मार दिया। तो टीचर बोलता है हाँ बेटा बताता हूं तुम्हें क्या क्या आने वाला है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा और एक एंट्रोपी आएगी। ऐसे दो वर्ड्स डाल दिए ना तो स्टूडेंट वहीं बेहोश हो जाता है, अरे एंट्रोपी आएगी, डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा। तो कृष्ण ने बाकी किसी का नाम नहीं लिया, भीष्म और द्रोण का नाम लिया, क्योंकि अर्जुन को सबसे प्रिय थे। भीष्म की गोद में पड़ा हुआ था, द्रोण से तो सारी उसने शिक्षा ली थी। तब कृष्ण ने बोला अच्छा बेटा तुम्हें बहुत लग रहा है कि कौन कौन आने वाला है, जरा मैं बता दूं कौन कौन है तुम्हारे सामने। अर्जुन देखे खड़े सामने लड़ने दादा ताऊ, चाचा पुत्र पौत्र ससुर मित्र गुरु और भाऊ। परिजनों को युद्धातुर देख अर्जुन हुआ निराश, करुणा भरे हृदय हृदय से बोले वचन उदास। अब भैया सामने देख लिया क्या आने वाला है, तो अर्जुन जो बोलते हैं अहो कृष्ण रणभूमि में युद्ध करने को आए, मेरे मित्र गुरु संबंधी और परिजन समुदाय। इन्हें देख मेरे अंग शिथिल और मुखे सूखा जाए, इनसे रण की मात्र कल्पना तन में कंपन लाए। हम सब ने कितनी बार अपनी लाइफ में ये फेस किया होगा, जहां हमें जरा सी ग्लिम्स मिल गई सामने क्या होने वाला है। चाहे वो किसी की बीमारी हो और हमें डॉक्टर ने कोई डायग्नोसिस बता दिया हो कि भैया तुम्हारा तो आर्टरीज इतनी ब्लॉक्ड है, या फिर कोई हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई मॉर्गेज क्लोज हो जाएगा और बैंक ने बोला भाई तुम्हारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, या फिर हम कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो और हमें लोन नहीं मिला हो। तो जैसे ही हमें फ्यूचर की हल्की सी ग्लिम्स भी मिल जाती है, वैसे ही हम परेशान हो उठते हैं, क्योंकि फ्यूचर भी हमें कंडीशनल चाहिए। हमें कुछ चीज चाहिए कि फ्यूचर में हो तो यही हो, और अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। गांडीव सरकता हाथों से काया है ज्वर की मारी, भ्रमित हुआ हूं अब है मेरा खड़े रहना भी भारी। हे केशव दिखते हैं मुझको उल्टे सारे लक्षण, अपनों का ही वध करने में भला कैसा आकर्षण। ये एक सेंटिमेंट है जो हम दिन रात जीते हैं। हर समय हम चाहते हैं कि हम अपने मन की करें, लेकिन दूसरों के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग भी ना पैदा हो, कि अपनों का ही वध करने में भला कैसा आकर्षण। तो हम कई बार जो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते, इस वजह से नहीं कर पाते, अपनों के मोह में फंस जाते हैं, अपनों के मोह के मुंह में फंस जाते हैं। और इसीलिए अर्जुन कह रहा है कृष्ण न चाहूं विजय ना मुझको राजभोग ललचाए, हे राजभोग गोविंद हमें क्या दे के जाए। जिनके लिए हम कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आए, वे पहले ही तन मन धन को तज के अपने आए। पितृ पुत्र आचार्य पिता में यहाँ लड़ने को आए, मामा ससुर पौत्र परिजन जहां तहां दिख जाए। मैं ना इनको मार सकूं मैं भले स्वयं मर जाऊं, हे मधुसूदन तीन लोक का राज अभी तज जाऊं। और अर्जुन ने ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को इस सबसे कुछ नहीं चाहिए। क्या मिले आनंद जनार्दन धृत पुत्रों को मार के, इसमें केवल पाप चढ़ेगा जीत बुरी इस हार से।
और यहाँ ये चीज आती है कि जब तक आपके मन में डाउट नहीं आता तब तक आपकी नॉलेज का रास्ता नहीं खुलता। धृत बाल और परिजनों का वदना मुझसे होवे, सगे संबंधों को मार के माधव कौन चैन से सोए। लोभ से अंधा शत्रु होगा ना कुछ और दिख पाए, कुल का हत और वध मित्रों का केवल पाप चढ़ाए। किंतु कुल के सर्वनाश का हमें ज्ञान साकार, क्यों ना हम युद्ध छोड़ जनार्दन करते सोच विचार। मैं कुल का जो अंत करूं तो धर्म को मिलता श्राप, अंत धर्म का होने से कुल में फैलता पाप। और यहाँ हमारा एक दूसरा नगेट आता है, बहुत आवश्यक है, कि कृष्ण अधर्मी कुल में दूषित होवे नारी, वार्ष ने इस जन्म से जन्मे संताने अभिमारी। क्या अधर्माभिभात कृष्ण प्रदूषंती कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दृष्टाशु वार्षणे जायते वर्ण संकरे। ये हमें गांठ बांध लेना है कि जब भी हम अपने धर्म के विरुद्ध जाते हैं तो हमारे अंदर की जो प्रजनन शक्ति होती है, जो हमारे थॉट्स क्रिएट करती है, जो हमारे एक्शंस क्रिएट करती है, जो हमारी प्रोक्रिएशन की शक्ति है, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, वो पल्यूट हो जाती है। तो हमें कभी भी अपने धर्म, अपने इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज उससे पल्यूट होके जन्मी है वो तो कभी सही हो ही नहीं सकती। तो जो चीज इसमें भी हमारा स्वधर्म नहीं है, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं, हमारा 100% नहीं है, उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, वो एक पल्यूटेड ही होगा, वो प्योर हो ही नहीं सकता। कुल को नरक की ओर धकेले संताने जो दूषित, पिंड अभाव में रहे तड़पते पुरखे घोर अनुचित। कुल मर्यादा धर्म रीति का निश्चित होता नाश, जगत लोक के धर्म का भी दूर नहीं विनाश। हे जनार्दन कहें सभी जो कुल का करते नाश, जीव सभी वे काल अनंत नरक में करते वास। अहो अचरज की कैसे हम सब युद्ध को हैं तैयार, राजभोग और लोभ के हेतु एक दूजे को मार। धृत बाल निहत्था भी यदि मेरा करे संहार, युद्ध करने के बदले मुझको होगा ये स्वीकार। और फिर संजय ने बताया कि अर्जुन ने फिर धनुष बाण निज नीचे दिए उतार, रथ के पीछे जा बैठा वह मन में शोक अपार। यहाँ हमारा पहला अध्याय खत्म होता है और हम ये देखते हैं किस तरह से एज अ रोलर कोस्टर ऑफ राइड, पहले हम पूरी वीरता, पूरे एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ करने के लिए, फिर हम एक फ्यूचर की ग्लिम्स देखते हैं और वो अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध जाती है तो हम उससे डर जाते हैं और फिर हम खुद ही अनाउंस कर देते हैं हम ये करेंगे या हम ये नहीं करेंगे। तो ये हमारी एक तरह से जीवन के युद्धों की, दिन भर के युद्धों की, जीवन के माइलस्टोन्स के युद्धों की एक इसमें लर्निंग छिपी हुई है कि किस तरह से हमें अपने आप को उन चीजों से परे रखना है जो हमें बांधती हैं। वो सब हम आगे सीखेंगे अध्यायों में, लेकिन यहाँ आई विल टेक अ पॉज। एक तो लॉजिकल भी है, अध्याय एक समाप्त हुआ, छोटा सा अध्याय था, ज्यादा फिलॉसफी नहीं थी, क्योंकि जब कृष्ण बोलेंगे फिलॉसफी तो तब शुरू होगी। अभी ऐसी कौन सी सिचुएशंस हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जहां हमने अपने आप को अर्जुन की तरह फील किया है कि हमारे पास सारा आर्सेनल है, सारी स्किल्स हैं, लेकिन हमारे सामने हमारे अपने खड़े हैं, चाहे वो किसी डिसीजन में, चाहे वो किसी और चॉइस में हम अपने आप को वीक महसूस करते हैं, हम कैसे इनके अगेंस्ट जाएं। सो एनीबडी हु वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट और शेयर similar instances where you felt like Arjun or whether you felt like Krishna, so then we can reflect how difficult it must have been for Arjun to face. और आप लोग अपने आप को, yes अमिता you can speak, आप अपने आप को अगर अर्जुन की तरह होते आप क्या करते? क्या आप कृष्ण से एडवाइस भी मांगते या सीधे चल पड़ते और ठीक है देखा जाएगा, let me go forward? Yeah, first of all, thank you so much, Avinash. That was well explained and very Sahaj Hindi rendition of Gita. Thank you. So, I mean, yes, sorry, is it okay if I speak in English? Please. A little bit mixed? Absolutely. So, I think I mean, that this manifests in several ways, right? So just to give you an example, when you're a wife and a mom and you're also a career woman, and you know, there might be opportunities for career progression, but that comes with the trade-off of, you know, obviously spending less time with your loved ones. So my question to you is it's a similar situation, मगर इस situation में आपको कैसे पता कि आपका धर्म क्या है इसमें? You know, what is your dharma? How do you know? हाँ, तो ये चीट शीट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि
अगले पूरे चैप्टर्स में वी विल डिस्कवर हमारा धर्म क्या है। एंटायर गीता इज अबाउट धर्म, पहला वर्ड उसका धर्म है। और एक सिंपल सा आंसर ये है कि आपको पता कैसे चले कि आपको करियर पे फोकस करना है एज अ प्रोफेशनल या फैमिली पे फोकस करना है एज अ मदर। तो चॉइस आप कौन सी लेंगे इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। धर्म हमारा, जहां तक मैंने समझा, एंड अदर्स कैन आल्सो चाइम इन, धर्म हमारा स्टैटिक नहीं रहता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। धर्म हमारा कंटेक्स्ट के हिसाब से बदलता है कि इस समय, अगर इसका एक सिंपल सा एनालिसिस करने का ये तरीका है, अगर मैंने इस समय ये नहीं किया तो क्या वो सही होगा या गलत होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ योर चॉइसेस। कि अगर मैंने आज फैमिली को प्राथमिकता देके, इफ आई डोंट स्टेप इन एज अ प्रोफेशनल, क्या कोई और कर सकता है? नहीं। सबसे बड़ा प्रपोजल ये मैं ही दे सकता हूं। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम द बेस्ट वन टू राइट दिस प्रपोजल। इफ आई एम नॉट देयर, माय टीम विल लूज, माय कंपनी विल लूज, सो आई हैव टू बी देयर। नाउ ट्रेड ऑफ इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रेड ऑफ तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। यू कैन नेवर हैव योर केक एंड ईट इट टू। बट यहाँ सवाल ये नहीं आ रहा कि आपको ट्रेड ऑफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं। यहाँ सवाल ये आ रहा है कि क्या आप एक्स करें या वाई, क्योंकि बेस्ट है। अगर आपको पता है कि उस दिन आप बच्चे को बीमार छोड़ के गए प्रपोजल बनाने, बच्चे को आपकी जरूरत है, बच्चा विल बी ट्रॉमेटाइज कि मेरे को जब जरूरत थी मेरी माँ मेरे पास नहीं थी। तो यहाँ पर ट्रेड ऑफ से पहली चीज ये आ जाती है कि कौन सा काम सिर्फ आप कर सकते हो। क्या आपके बजाय कोई केयर टेकर है जो बच्चे की देखभाल कर सकता है? देन इट इज लेसर ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू। बट अगर आपको पता है उस समय कि चाइल्ड नीड्स यू एंड नोबडी एल्स विल गिव व्हाट द चाइल्ड नीड्स फ्रॉम यू, टीम में probably team needs you but somebody else will step in. So you have to see at that point in time what is it that you and you alone can do. कृष्ण अर्जुन को क्यों बोला कि तेरे को युद्ध करना है? कृष्ण को पता था अर्जुन के अलावा कोई और नहीं है जो कौरवों का नाश कर पाएगा। और इस समय अगर अर्जुन अपने युद्ध की उससे विमुख हो जाएगा तो वो ना केवल उसका धर्म नहीं कर रहा, वो और डिमोरलाइज करेगा बाकी लोगों को जो who look up to him as a role model. तो यू विल गेट द आंसर्स ऑल्सो। जब हम आगे जाएंगे तो हम किस चीज से फंस रहे हैं, कौन सी चीज मोह है वर्सेस प्रेम है वर्सेस धर्म है वर्सेस ड्यूटी है। जब इन न्यूएंसेस में हम जाएंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट आइदर ऑफ संध्या जी और फूफा जी और प्रमोद और एडी, जो एक सेशन पूरा कर चुके हैं, टू आंसर योर क्वेश्चन। व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, जिन्होंने ये यात्रा कर ली है और बाकी जिन्होंने भी गीता कई बार पढ़ ली है, how do they look at trade-offs? And a simple example, professional versus family, a choice. How do they look at it? I can relate to her. Emotional blackmailing होती है, घरों में फंस जाते हैं. But then, you know, as Avinash said that, well, you have to make choices. And you do make choices, I suppose. You know, 2-4 बार मात खाते हैं, फिर उसके बाद समझ आता है, गीता का समझते हैं कि ठीक है भाई, ये मेरा कर्म है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और यही रास्ता मुझे लेना है, और मुझे उसमें गिल्ट नहीं लाना है. हम फंसते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग में, हम रिलेशंस में बहुत फंसते हैं कि इसको बुरा लग जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, छोड़ दीजिए वो, कोई किसी को बुरा नहीं लगता. यू नो, यू हैव टू, यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ, योर इनर सेल्फ. And if we are true to ourselves, I think eventually it all comes to that. I have been a working mother. I have had, you know, adults at home. और वो हमेशा गिल्ट ट्रिप में चलते हैं कि you are not able to do justice at work, you are not able to do justice at home. Nobody is happy with you. This is what I always felt. But then one fine day I said, no way. And at the end of the day, आपको अपने को खुश रखना विद द ऑनेस्ट इंटेंशन. और जैसा अविनाश जी आगे आगे बताएंगे ना, आगे आगे बहुत क्लियर हो जाएगा आपको खुद लगेगा अरे मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा क्यों. वो सब जब हम सारे गुणों की बात करेंगे ना, तो अविनाश जी आप थोड़ा जर्नी में आगे आइए, आप खुद ही अपने आप को आंसर कर देंगे. जस्ट टू गिव यू अ क्विक आंसर टू द क्वेश्चन, गीता के 17वें अध्याय में एक श्लोक है, सहज कर्म में दोष भय तो ना कर उसका त्याग, सहज कर्म और दोष तो संग धुआं के आग. तो उसका एसेंस ये है, सहज कर्म जो आपका धर्म है,
वो हम आगे सीखेंगे सहज कर्म क्या होता है। लेकिन अगर उसमें दोष दिखाई दे रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि भाई मेरे को लग रहा है इसमें देयर इज समथिंग अमिस, आई शुडंट डू दैट, तो भी उसका त्याग मत करो, क्योंकि ऐसा कोई भी कर्म परफेक्ट नहीं होगा जो हर पैरामीटर पे परफेक्ट निकलेगा। लेकिन अगर वो आपका स्वधर्म है, दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, इवन दो उसमें थोड़ा सा इम्परफेक्शन भी हो, तो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, डोंट बी हार्श ऑन योर कर्मा। क्योंकि ये हम सीखेंगे, हम जितनी नेगेटिविटी हल्की सी भी माइंड में रखते हैं ना, वो हमारे साथ आफ्टर लाइफ तक जाता है। जो मैंने बोला, हम जो आज हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल आवर प्रीवियस एग्जिस्टेंसेज। और आज अगर हमने एक गलत कदम उठाया, बिकॉज ऑफ वील कम टू व्हाई दोज ट्रैपिंग्स आर, चाहे हम उसे इम्परफेक्शन ही समझ रहे हैं कि भाई ये तो पूरी तरह मैटरनल लव नहीं दिया मैंने, उस दिन माई चाइल्ड नीडेड मी एंड आई वाज अवे ओवर देयर, बट फैक्ट इज यू आर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। तो आगे हम ये सीखेंगे कि अगर हमें imperfections हैं, we have to learn to live with imperfections, our own imperfections also. So that will hopefully give you some solace. ये I'm going to wait, Avinash ji and Sandhya ji. I'm going to wait because इतना आसान नहीं होता, कभी कभी clarity नहीं होती है कि अरे definitely कौन lose करेगा and all that. So I'll wait. Maybe I'm just, it's too early to ask this question. अमिता प्लीज आप मुझे अविनाश जी मत बोलो। Very valid question. Very valid. But these are all very valid questions. This is what Gita is there to answer, 100%. So hopefully we'll all, and you'll have many more questions. जैसे दिनेश जी बोल रहे थे कि at times you feel गीता खुद को contradict कर रही है. That is where the nuances come in. कि हर चीज का एक कंटेक्स्ट होता है। एक जगह वो बोलेगा कि अपनी स्वधर्म का पालन करो, दूसरी तरफ वो अर्जुन ने खुद बोला है, प्रभु एक तरफ आप ज्ञान की बात बताते हो, अब कर्म की बात बताते हो, मैं कर्म करूं या ज्ञान करूं। सो दे विल बी ऑल दीज क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट्स। बट आपको टू आंसर अ क्वेश्चन, होपफुली at the end of chapter 18 and even much before that, you will find an answer to this question कि हम किस चीज से बंधे, किससे ना बंधे, and that will guide you. Awesome. Thank you. आप बोले प्लीज। जी आप कुछ कह रहे हैं फूफा जी? हाँ, मैं कह रहा था वास्तव में किसी परिस्थिति में उचित निर्णय क्या है वो समय की परिस्थितियों पर निर्भर है। आपका ऑडियो थोड़ा समय फंबल बदलता है। है, अलग कभी-कभी हमारे प्रेम भी बदलते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या उचित निर्णय लेना पड़ता है। आपका कभी-कभी ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है फूफा जी, थोड़ा muffled सा आ रहा है। नहीं आ रही आवाज? नहीं यार। बुआ जी आपकी आवाज क्लियर आ रही थी, आप बोल के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। वो शायद माइक का पोजीशन ऐसा हो। अरे तुम्हारी आवाज आ रही है, मेरी आवाज मेरी हाँ आ रही है? हाँ क्या कहते हैं ना? मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। अरे तो फिर आप तो यही से बोलते हैं, क्यों नहीं आ रही? हाँ, चलिए अब बोलिए। नहीं बोल रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि किसी भी प्रश्न में दो पहलुओं से हमेशा निकलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होती है, हर कॉइन की दो साइड तो है ही। कौन सी साइड किस समय इम्पोर्टेंट है, कौन सी करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, वो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर है। करेक्ट। अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो उसको बदलना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन जो है, अर्जुन के एक तरफ तो देख रहा है कि हमारे बड़े बड़े पितामह और गुरु इत्यादि इनका संभावना है, और दूसरी ओर राज्य मिलने का है, तो हमें करना क्या चाहिए। तो जो उनके आदर्श जीवन के हुए पितामह और हमारे गुरु ने जो हमारे आज हमारे वजह में है, इसलिए हम ये तो काम नहीं करेंगे कि हमारे पितामह और गुरु हमारे जाए, उसके बजाय कहिए मैं छोड़ देता हूँ। ये उनके माइंड में बात आती है।
ये बात आ भी सकती है, कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक जीवन का लक्ष्य उसके ऊपर उठकर है। ये युद्ध हुआ क्यों, किस वजह से हुआ? तो इस युद्ध में पितामह और गुरु की भूमिका तो होना ही नहीं चाहिए। तो वो क्वेश्चन अगर थी तो कई उचित है ये भावना हमें कि हमारे गुरु हैं वो बड़े हैं, इसलिए इनको कोई हानि क्यों नहीं चाहिए। अगर कर्म और धर्म में यही कॉन्फ्लिक्ट है तो धर्म अपना इम्पोर्टेंट है, और उस धर्म के द्वारा ही धर्म की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा है मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक थोड़ी सी आवाज फिर भी बट आई कुड फॉलो। तो परिस्थितियों के हिसाब से आपका धर्म बदलता है और उस धर्म के हिसाब से आपका कर्म बदलता है और बदलना चाहिए भी। सो दैट इज सम इन सब्सटेंस। तो हर परिस्थिति में वही कर्म धर्म नहीं हो सकता। तो ये युद्ध क्यों हो रहा है? जैसे अर्जुन कह रहा था ये युद्ध राजभोग मैं कितना ले लूंगा, मैं क्या ले लूंगा, एंजॉय करूंगा, ये उसके लिए नहीं हो रहा था। युद्ध इसलिए नहीं लड़ा जा रहा था कि वो जीत के अर्जुन उनको राज्य प्राप्त कर लेगा और बड़ा किंग बन जाएगा। ये युद्ध हो रहा था अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना के लिए, और उसमें अर्जुन जैसे योद्धाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी था। तो जब हम अपने आप को 10 कॉन्फ्लिक्टिंग चॉइसेस में पाते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू से उन 10 में से व्हाट इज इट दैट आई एम वेयर आई एम रिक्वायर्ड टू डू व्हाट। और उस समय हमें चॉइसेस करनी होती हैं, कहाँ हम इंडिस्पेंसिबल है, कहाँ डिस्पेंसिबल है, कहाँ हम मोह की वजह से बैठे हुए हैं, कहाँ हम रिश्तेदारी की वजह से बैठे हुए हैं। दैट हेल्प्स अस टेक दैट डिसीजन। और उसके बाद भी कई बार डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो वी हैव टू, Gita also teaches us to be resilient when we have made some wrong choices. When we reflect back and say, yes, this was a wrong choice, it tells you how to come out of that also. So I think अभी we are almost on the hour. हम अगले वीक शुरू करेंगे. We'll continue with some discussion because discussion is the essence of this particular initiative. तो अगर किसी को कुछ और भी डाउट आए चैप्टर 1 से रिलेटेड, सॉल्यूशंस पे हम जाएंगे। सॉल्यूशंस हमारे पास 17 अध्याय पड़े हुए हैं टू डिराइव द सॉल्यूशंस, लेकिन क्या क्वेश्चंस हैं वो जरूरी है फॉर अस टू नो, सो दैट वी नो एज वी गो अलोंग वी विल एड्रेस दोज क्वेश्चंस। सो प्लीज कम बैक नेक्स्ट संडे एट द सेम टाइम विद योर क्वेश्चंस एंड कीप इट गोइंग सो दैट वी कैन माइन मोर एंड मोर ऑफ द नगेट्स फ्रॉम दिस जिसे बोलते हैं इनक्रेडिबल scripture that we have. Thank you. Sure. Thank you. Thank you. Thank you, Avinash. धन्यवाद See you सबका next बहुत week. बहुत जुड़ने के लिए। Thank you everybody for joining. Thank you और अविनाश जी। उम्मीद करते हैं आज सबको पानी बहुत ठंडा नहीं लगा होगा, आप लोग लौट के दोबारा आएंगे गोता मारने के लिए। अभी थोड़ा सा टाइम है डुबकी खाने के लिए। प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम द कोल्ड वाटर। ये बहुत अच्छा था और बहुत बहुत मजा आया। And I'm sure we'll enjoy it more. Thank you so much. Thank you all for Thank you. joining. Om Tat Sat. Bye. Namaskar. 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 Hari Om.